باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے اندر کرنے والے کام۔ تو جو فرائیڈے ہے جمعہ نکلا کہاں ہے؟ جمع سے، اکٹھا ہونا یا پھر گیدرنگ، اجتماع کا دن جہاں پر لوگ جو ہیں جمع کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے لوگ جمعے کی نماز کے لیے بھی اس کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور اسی دن بولا جاتا ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ قیامت بھی اسی دن جو ہے کیا ہوگی؟ آئے گی۔ تو قیامت کے دن کو بھی اکٹھا کرنے والا دن بولا گیا، آگے جو ہے آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے اس دن کو کیا جمعہ یعنی کہ جمع ہونے والا دن اور اجتماع کا دن، یعنی کہ یہاں پر جتنے بھی ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اکٹھا ہونے والا دن، الحمدللہ۔ اور قرآن میں جو ہے اس کے نام کی ایک سورت بھی ہے، جمعہ، سورت الجمعہ ہے۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے بارے میں، جمعے کی نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اور اصل حقیقت کیا ہے جمعے کی، اس کے فضائل کیا ہیں، خاص کر اس کے اندر کیا اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم لوگوں نے کیا جمعے کو بنا دیا، دیکھیں جمعے کو ہمیں لگتا ہے کہ صرف اور صرف نماز ہے، اور گلف کنٹریز میں جمعے کے دن کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہوتی ہے۔ گلف کنٹریز میں کیا ہوتا ہے؟ چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن وہ چھٹی اس لیے ہے بہنوں، تاکہ جو ہے ہم اس کے اندر، کیونکہ یہ خاص دن ہے تو اس کو کیا کر سکیں ہم، اس کو جو ہے عبادت میں لگا سکیں، اس کو کیا کر سکیں جتنے بھی خاص کام اس کے اندر کرنے ہیں وہ اور بھی زیادہ خاص طریقے سے ہم لوگ کر پائیں۔ اس لیے جو ہوتی ہے وہاں پر چھٹی دی جاتی ہے۔ ہم انڈیا میں ہے، یہاں پر چھٹی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کام بتائے جائیں گے کرنے کے لیے اور جتنی بھی اہمیت اس کی ہوگی اس کو مانیں، اور جو ہے ہر چیز پر جو ہے عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم چلیں گے آنے والے ٹائم میں۔ تو یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 68 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہتے، یہ قرآن کی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے ہم اگر جمعے کی بات کر رہے ہیں تو جمعہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ چوزن، یعنی کہ چنا ہوا ہے۔ پسند، اللہ سبحانہ، پسند کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چن لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو جو ہے جس کو چاہے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا اپنی مخلوقات میں سے؟ کیا کیا؟ انسانوں میں انبیاؤں کو چنا، اسی طریقے سے دنوں میں جمعے کو چنا، اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کو چنا، اسی طریقے سے عشرہ میں عشرہ ذوالحج کو چنا، اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں رات کا جو تہائی حصہ ہوتا ہے جس میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس کو چنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے جس چیز کو چاہے وہ پریفرنس دیتے ہیں، جس چیز کو چاہے وہ پسند فرماتے ہیں، اور جس چیز کو چاہے وہ کیا کرتے ہیں، اس چیز میں کسی بھی اعمال کو خاص بنا دیتے ہیں کہ اسے کون سا سب سے زیادہ پسند ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہمیں سورہ القصص کی آیت نمبر 68 سے پتہ چل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بھی دن کو چاہے، جس بھی گھڑی کو چاہے، جس بھی مہینے کو چاہے، جس بھی سال کو چاہے، یا 10 دن یا عشرے کو چاہے، یا کسی بھی انسان کو چاہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ پیدا کرتے ہیں اور پسند کر لیتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے اب ہم جمعہ دیکھیں گے کہ جمعہ ہوتا کیا ہے۔ جمعہ اٹ از دا اوریجنل بلیسڈ ڈے، یعنی کہ یہ رحمت والا دن ہے۔ کیا ہے بہنوں؟ رحمت والا دن ہے یہ، الحمدللہ۔
तो सही मुस्लिम की ये रिवायत है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नेज़ उन्होंने अबू मालिक ने रबी बिन हराश से और उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि उन दोनों सहाबियों ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जुमा की रात से हटा दिया। इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में लाया और जुमे के दिन की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा दी। उसने जुमा उसने जुमा, फिर हफ्ता, फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में से पीछे हैं, उसी तरह कयामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। अहल दुनिया में से हम सब के बाद हैं और कयामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है? इसको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहनुमाई का दिन बोला। क्या कहा कि यहाँ पर जो है ये ब्लेस्ड डे है, ये रहमत वाला दिन है। जिस तरह से क्रिश्चियन लोगों को कौन-सा दिन दिया गया था इबादत के लिए, उनको इतवार दिया गया था, संडे दिया गया था। क्रिश्चियन लोग आज भी जो है चर्च में जाते हैं, वो संडे के दिन जाते हैं। उसी तरीके से जो यहूदी हैं, उनको जो है क्या दिया गया था? उनको हफ्ते यानी कि सैटरडे का दिन दिया गया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इस हदीस से क्या पता चलता है कि हमसे पहले जो थे लोग आए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें जुमा की रात से हटा दिया। यानी कि ये इतना ब्लेस्ड और इतना रहमत वाला दिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से क्या किया, इस दिन को नहीं दिया उन्हें। और इसलिए यहूद के लिए बाकी दिन कर दिया। अब देखिए, पहले जुमा आता है, फिर हफ्ता यानी कि सैटरडे आता है और फिर उसके बाद क्या आता है? इतवार आता है। तो इस दुनिया में जिस तरीके से पहले जुमा आता है, उसी तरीके से क़यामत के दिन क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें होंगी, हाँ, जो हमारा हिसाब-किताब होगा, यानी कि जुम्मा वाले जो हैं, जो उम्मत मुस्लिमा की यहाँ पर बात हो रही है। तो उम्मत मुस्लिमा या उम्मत मोहम्मदिया बोले, है ना? एक तो उम्मत मूसा है, उम्मत ईसा है और उम्मत कौन? मोहम्मद, ठीक? तो उन लोगों का हिसाब-किताब भी जो है पहले हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ये कितना ब्लेस्ड दिन है कि जिनको ये रहमत वाला दिन मिला है, उनका हिसाब-किताब भी पहले हो जाएगा और जो है उस दिन भी जो जिस तरीके से ये जुम्मा पहले आता है, इन 2 दिनों से पहले आता है, उसी तरीके से हम वहाँ पर उनसे ज़्यादा पहले रहेंगे। लेकिन मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? अमल और किस चीज़ के लिए? अ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, सैटरडे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यूज़ के लिए होता है, यहूदियों के लिए होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस दिन का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमको तरजीह दी है, हमने पढ़ा था सूरह बकरा में कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें प्रेफ़रेंस देते हैं और बाकी लोगों को नहीं दी इस चीज़ के लिए, तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई बहुत ज़्यादा रहमत वाली बात जो है छुपी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी तरीके से इसको बेस्ट डे बोला जाता है बहनों, बेस्ट डे। ठीक है, तो ये रिवायत है सही मुस्लिम की। इसको पढ़ते हैं। अब अबू ज़नाद ने अरूज से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकलता है, जुमे का है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था और उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी में उन्हें उससे निकाला गया। खिलाफत अर्ज़ी सौंपी गई, है ना? खलीफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहे थे। बोला था कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। इसी दिन क्या हुआ था? खिलाफत अर्ज़ी सौंपी गई और कयामत भी जुमे के दिन ही बर्पा होगी। सालेह ममनून के लिए ये इनाम अज़ीम हासिल करने का दिन होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये क्या है कि ये बेहतरीन दिन है जिसमें सूरज निकलता है, मतलब कोई ऐसा दिन है ही नहीं कि जिसके अंदर सूरज निकले और वो बेहतरीन दिन हो। ये क्या है? बेस्ट डे। एक होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट, बेहतर और बेहतरीन।
बेस्ट डे किसको बोला गया? जुम्मे को बोला गया, और इसमें पता चला हमें आदम अलैहिस्सलाम का जो है कितना ज़्यादा कनेक्शन है इन चीज़ों से। और क्या है, क़यामत जो है इसी दिन क्या होगी? क़यामत भी जो है इसी दिन आएगी। यौम जुम्मा, इसी तरीके से जुम्मा यानी कि इकट्ठा होना, उसी तरीके से क्या होगा कि क़यामत के दिन भी जो है इंसान इकट्ठा किया जाएगा, इसलिए इसको जुम्मा का दिन कहा जाता है, क्योंकि लोग क्या होंगे, वहाँ पर जमा होंगे, इकट्ठे किए जाएँगे। तो एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर इस चीज़ में गौर करना चाहूँगी कि ब्लेस्ड डे है, हर चीज़ है, वो अभी आगे भी आएगा, इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जो ब्लेस्ड डे है और सब कुछ है, तो जितने भी लोग थे आज उठे, उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने सूरह कहफ पढ़ी, उन्होंने गुस्ल किया, जितने भी सुन्नत काम जो है हदीसों से साबित है उन्होंने वो किया, या जुमे के आदाब थे वो किया। उसके अलावा क्या किसी ने सोचा कि आज कयामत आ सकती है तो मैं कोई गुनाह ना करूँ और मैं उस चीज़ से बच जाऊँ? ये जो है इस हदीस में लिखा हुआ है कि और कयामत भी जुमा के दिन ही बर्पा होगी। और सबसे अफ़सोस की बात तो ये है बहनों कि हम लोग क्या है ना, हम लोग भूल गए हैं इस चीज़ को। हमें क्या लगता है कि जुमे का दिन है, आज कॉलेज में भी वैसे 1 घंटे का रेस्ट होता है, तो अब कितने घंटे का रेस्ट होगा? आज 2 से 3 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने क्या किया, हम या तो आकर सो गए, या फिर हमने उस वाले टाइम को क्या किया, अपने गर्क कर दिया पूरी तरह से। जबकि हदीस में साफ-साफ लिखा है, जुमे का मायना ही वही है, जमा होना। तो क्या अगर आज कयामत आने वाली होती और इतना, तो क्या हम तैयार थे? हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो इसीलिए जुमे की फ़ज़ीलत जानना ज़रूरी है। और इस चीज़ से जो है परिंदे भी डरते हैं। आगे जो है आएगी वो हदीस कि हम लोगों ने, जिन और इंसान ने, इतने ज़्यादा हम लोग गफ़लत में पड़ गए हैं कि हम लोगों ने इसकी फ़ज़ीलत जानने के चक्कर में अच्छे काम ना किए, और क्या करते हैं, इसको छुट्टी का दिन समझ के और जो है रेस्ट का दिन समझ के जो है रह जाते हैं। क़यामत इसी दिन जो है नाज़िल होगी। इसी तरीके से इसको जो है क्या कहा जाता है, दिनों का सरदार कहा जाता है। दिनों का सरदार कहा जाता है। हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंज़र रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह के अल्लाह के यहाँ इसकी अज़मत सबसे ज़्यादा है। तो अल्लाह के यहाँ ईद उल अज़हा, अल्लाह के यहाँ इसकी अज़मत सबसे ज़्यादा है, वो तो अल्लाह के यहाँ ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र के दिन से ज़्यादा अज़मत वाला है। इसमें 5 बातें हैं जो उसकी अफ़ज़लियत का बाइस हैं। उस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ़रमाया, उसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा, उसी दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़ौत किया। उस दिन में एक ऐसी घड़ी होती है कि इसमें बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगे, अल्लाह उसे वह कुछ दे देता है, जब तक किसी हराम चीज का सवाल ना करे। उस दिन कयामत कायम होगी, और हर मुकर्रब और फरिश्ता फरिश्ता, आसमान जमीन, तमाम हवाएं, पहाड़ और समुंदर जुमा के दिन से डरते रहते हैं। अब देखिए, दिनों का सरदार यहाँ पर बोला गया, लेकिन देखिए ये इससे पहले जो थी, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, और इससे पहले ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो बहनों, ये देखिए कि अजीम दिन भी करार किया गया। आदम अलैहिस्सलाम से इसका जो है क्या है रिलेशन, क्या कनेक्शन है, वो भी बताया गया। लेकिन उसके बाद क्या कहा गया कि कयामत जो है इसी दिन आएगी। दोनों ही हदीसों में क्या कहा गया, कयामत इसी ही दिन आएगी। और अभी जो है हाल फिलहाल में ही अर्थक्वेक आया था, और सब जो है इतनी अफ़रा-तफ़री मचाने लग गए थे, और इतना ज़्यादा जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने झंझोड़ के रख दिया था। 2 सेकंड में सारे काम इंसान भूल जाता है कि कल कॉलेज भी जाना था, कल क्या करना था, किसको कितने पैसे देने थे, किसी से उधार लिया था, हर चीज़ भूल कर क्या हो रहे थे, इधर-उधर क्या हो गए थे, भागने लग गए थे, दौड़ने लग गए थे। हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने गुनाह बढ़ गए हों, ये सिर्फ़ आखिरी मौका हो, और आज जुमा को हम लोगों ने किसी ने भी इस तरीके से लिया नहीं कि क्या पता आज ही कयामत कायम हो जाए।
तो बेहतर दिन है, दिनों का सरदार है, लेकिन इसके साथ क्या है कि कयामत भी जो है इसी दिन क्या होगी, आएगी। तो हमें क्या करना है, इस दिन में हम ऐसे काम करें कि अगर कयामत आए भी और हम जो है नमाज की हालत में हो, या कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तिलावत कर रहे हों, या इबादत कर रहे हों, या हमारे हाथों से क्या हो, सदका दिया जा रहा हो, तो पूरे दिन को में हमें खुद को इस तरीके से एंगेज रखना है कि ताकि कुछ होता भी है तो हम क्या करें, हमारा जो खात्मा है वो अच्छी चीज़ पर हो, इंशाल्लाह। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये इस चीज़ को फिर से वो किया, जो है अलग से स्लाइड बना के डाला कि आदम अलैहिस्सलाम से क्या है, ये डीपली कनेक्टेड है, जो कि हम इससे पहले की 2 उसमें भी पढ़ चुके हैं, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ है, जुमे का दिन है, उस पर आदम को पैदा किया गया, उस पर उसे जन्नत में दाखिल किया गया, उसी पर वहाँ से निकल, और आखिरी घड़ी जुम्मा के अलावा किसी दिन नहीं होगी। देखिए बार-बार, बार-बार, बार-बार किसी भी चीज़ को बार-बार बोलने का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ की अहमियत समझा देना। हर बार एक नई हदीस है, इससे पहले सुनन इब्न माजा की थी, इससे पहले जो थी सही मुस्लिम की थी, और ये भी सही मुस्लिम की जो है रिवायत है। किसी भी चीज़ में, किसी भी हदीस की जो है, जो लफ्ज़ है और जो सही हदीस है, वो क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि किसी एक चीज़ पर गौर किया जाए। जब एक चीज़ बार-बार, बार-बार बोली जाती है, तो आइंदा से क्या होगा, हम इस चीज़ को समझ लें कि जुमा बेशक इबादत का दिन है, बेशक इबादत गुज़ार लोग जो हैं उसके अंदर बहुत अच्छे-अच्छे काम करते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए, हमें डरना चाहिए उस चीज़ से कि कहीं हमारी आखिरत का दिन जो है आज ही ना हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज ही कयामत हो, और अगर हो तो हम अच्छी हालत में मरे बहनों। ऐसा कुछ काम ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि हम क्या करें, हम मर जाएँ। ऐसी हालत में, जिस हालत में हम नहीं चाहते मौत, उस काम से क्या करें, दूर हो जाएँ। इसी तरीके से इससे पहले वाली रिवायत में भी हमने पढ़ा कि इस दिन में जो है एक घड़ी होती है, जिसमें जो है क्या होती है, दुआ कबूल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुबीन अपी हर फ्राइडे जो है, हर थर्सडे ये बात बताती हैं सबको कि दुआ कबूल होती है, दुरूद शरीफ भेजना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? ये सुनन अबू दाऊद में भी है और सुनन नसाई में भी इसका जो है ज़िक्र है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा अनहुमा रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन में 12 घड़ियां हैं। जो भी मुसलमान उस हालत में पाया जाए कि अल्लाह ताला से कोई सवाल करता हो, तो अल्लाह ताला उसे वो चीज इनायत फरमा देता है। लिहाजा उसे असर के बाद की आखिरी साअत में तलाश करो। यानी कि इस दिन में एक ऐसी घड़ी है और एक ऐसी चीज है, जैसे कि यहाँ पर भी इससे पहले भी बोला गया कि इसमें क्या है, इस दिन कयामत कायम होगी, हर मगरिब फरिश्ता, ऐसी घड़ी होती है कि उसमें बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगे अल्लाह उसे वही कुछ देता है, जब तक कि किसी हराम चीज का सवाल ना किया जाए। तो इस दिन क्या होती है, दुआ कबूल होती है, और एंड देयर आर 100% चांसेस ऑफ गेटिंग दुआ टू बी एक्सेप्टेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को कबूल करते ही करते हैं। तो हमें क्या है, असर के बाद से मगरिब के बीच तक जो है क्या करनी चाहिए, दुआएँ करनी चाहिए। हालाँकि वो जो चीज़ है किसी हराम चीज़ के लिए ना हो, वो जो है किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, हलाल चीज़ के लिए होनी चाहिए। तो अभी तक हमने फ़ज़ीलत में क्या देखा कि ये बहुत ही कैसा दिन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन को हमारे ऊपर रहनुमाई वाला, यानी कि हमारे लिए गाइडेंस वाला जो है दिन बनाकर भेजा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ये दिन बहुत ज़्यादा अज़ीम है, यानी कि बेस्ट डे है, बेहतरीन दिन माना जाता है, और इससे ज़्यादा बेहतरीन दिन कोई भी नहीं होता जिसके अंदर जो है सूरज उगता हो। फिर उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि ये दिनों का सरदार भी माना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि आदम अलैहिस्सलाम के
से जो है ये डीपली कनेक्टेड है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, इसी दिन जो है आपको ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन आपने वफ़ात फ़रमाई। और इस तरीके से हमने 5वीं चीज़ क्या पढ़ी कि फ्राइडे में एक ऐसा घंटा होता है, एक ऐसी घड़ी होती है, वो भी देखिए स्पेसिफ़ाई कर दिया गया कि उसको भी असर के बाद ढूँढे और उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, दुआएँ नहीं माँगते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस दिन में, इस घड़ी में क्या करेंगे, खूब दुआएँ करेंगे ताकि हमारी दुआएँ जो हैं कबूल हो जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन की कसम भी खाई है। सूरह अल बुरूज की आयत नंबर 1 से 3 पढ़ेंगे। कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है, बुर्ज का मतलब क्या होता है, जिसमें नक्षत्र हैं, जिसमें सितारे हैं, जिसमें क्या है, ग्रह हैं, है ना? प्लैनेट हैं। कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है और उस दिन की जिसका वादा है। तो कौन से दिन का वादा है? अभी इसके आगे इसकी तफ़सील में एक हदीस बयान हुई है। और इस दिन और उस दिन का जो गवाह है। क्या है? कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है और उस दिन की जिसका वादा है और उस दिन की जो गवाह है। तो अब इस आयत की तफ़सीर जो है हमें मिलती है जामिया तिर्मिज़ी से। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम मऊद यानी कि वादे का दिन। दूसरी आयत में पढ़ा ना, यौम मऊद यानी कि वादे का दिन कयामत का दिन है। और यौम मशहूद यानी कि गवाही शहादत का दिन यौम अरफा है। यौम अरफा कौन सा हुआ? जो 9 जुल्हज। और यौम शहादत है, जुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ना तुलू होता है और ना गुरूब होता है उस दिन जो उससे ज्यादा फजीलत वाला हो। ये इस आयत की तफसीर बयान की जा रही है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन की क्या किया, कसम खाई है। उसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मोमिन बंदा अल्लाह ताला से खैर की दुआ नहीं करता मगर अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। और वो किसी चीज के लिए अल्लाह ताला से मदद नहीं मांगता मगर वो उसमें उसकी मदद करता है। ये देखिए, ये तिरमिजी शरीफ है, सही मुस्लिम मुस्लिम है, सुनन नसाई है बहनों। इन सारी हदीसों में इसी का जो है तज़किरा है, हर चीज़ का तज़किरा है। तो इस चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलने का मकसद क्या होता है? लफ्ज़ों को दोहराना नहीं, उस चीज़ का असल मकसद उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन की क्या की है? कसम खाई है। कसम आसमान की जिसमें बुर्ज है और उस दिन की जिसका वादा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस चीज़ की जो है कसम खाते हैं वो क्या होता है? वो हक़ होती है। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? वल फ़ज्र, फ़ज्र के टाइम की हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम खाई है, वल अस्र इसी तरीके से जो है जुमा के दिन की भी क्या खाई है? कसम खाई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है क्या किया? इस्लाम को पूरा किया, परफेक्टेड द रिलीजन ऑफ ऑन अ फ्राइडे। किस दिन? जुमा के दिन ही क्या हुआ? इस्लाम जो है पूरा हुआ। तारिक बिन शहाब ने बयान किया कि एक यहूदी काब अहबार इस्लाम लाने से पहले पहले वो यहूदी थे और फिर जो है वो किसके पास आए? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हमारे यहाँ सूरतुल माइदा की ये आयत नाजिल होती कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन की पसंद कर लिया, तो हम इस दिन को ईद खुशी का दिन बना लेते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं जानता हूँ कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई थी। अरफा के दिन नाजिल हुई थी और जुमे का दिन था। इमाम बुखारी ने कहा, ये रिवायत सुफियान ने मयस्सर से सुनी, मयस्सर ने कैस से सुना और कैस ने तारिक से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही अल बुखारी की जो है हदीस है बहनों। तो यहाँ पर जो है किसकी बात हो रही है? जब अराफा का दिन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था लोगों से इसके बारे में। जब जुल्हज का लेक्चर हुआ था तो भी ये बात हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था जितने भी सहाबा थे, क्या मैंने तुम तक
दीन पहुँचा दिया? क्या मैंने तुम तक इस्लाम पहुँचा दिया?" तो सहाबा ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, आपने हम तक इस्लाम पहुँचा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उँगली आसमान की तरफ की थी और कहा था, अल्लाहुम्मा अशहद, या अल्लाह तू गवाह रहना, और या अल्लाह तू गवाह रहना। तब सूरह मायदा की ये वाली जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर लगाने के लिए अपनी ये नाज़िल की थी और कहा था, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दून दीन के पसंद कर लिया। तो हम इस दीन को कैसे, वो अब ये यहूदी था जो कि बोल रहे थे इस तरीके से कि हम इस दिन क्या करते, ईद मनाते। और फिर बहरहाल जो इसका निचोड़ है, अ, इस हदीस का जो निचोड़ है, इसके अंदर ये है कि जुमा के दिन ही दिन जो दीन था, जो इस्लाम था, वो क्या था, मुकम्मल हुआ था बहनों। तो कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है ये मुकम्मल करने वाला दिन, और जो है क़यामत वाला दिन, दिनों का सरदार वाला दिन, सबसे बेहतरीन दिन। उसके अलावा जब इंसान की शुरुआत हुई, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला दिन, हर चीज़, और सबसे बड़ी बात कि हम जो है दुआ माँगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कबूलियत वाला दिन क्या है, जुमा है। जब तो हमने इस दिन को किस तरह की तरीके से गँवाया, और इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, इस दिन को आने वाले जुमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब बहनों को, जितनी भी यहाँ बैठी हैं, सबको जो है ये दिन क्या करे, अब फिर से जो है नसीब फरमाए, और इस दिन का क्या करें, फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी तरीके से ये बार-बार ये आयत आई है, द डे ऑफ जजमेंट टेक्स प्लेस ऑन इट, यानी कि क़यामत का दिन कौन-सा है, जुमे का दिन होगा। अब देखिए कि ये हदीस हमने बहुत बार पढ़ ली है कि कयामत का दिन जो है, कयामत कब नाज़िल होगी, जुमे के दिन होगी, जुमे के दिन होगी, जुमे के दिन होगी। लेकिन यहाँ पर इस हदीस में, पूरी हदीस है ये, तो सुनन अबू दाऊद की हदीस है, उसमें अफ़सोस की बात है, ये है कि जिन व इंस के लिए ऐसा नहीं है। जुमा के दिन हर हैवान कयामत के खौफ से तुलु आफ़ताब तक इंतज़ार में रहता है, लेकिन जिन व इंस नहीं। यानी कि हर, क्या बोला यहाँ पर, हर हैवान, यानी कि जो जानवर है, जो चरिंद है, जो परिंद है, वो क्या कयामत के खौफ में रहते हैं आज के दिन। और किस चीज़ की अफ़सोस की बात ये है कि इंसान को तो पता ही नहीं, इंसान को तो लगता है कि रेस्ट का दिन है, जुमे के दिन रियायत दे दी जाती है ऑफ़िसेज़ में भी, किस चीज़ के लिए, नमाज़ के लिए रियायत दी जाती है। इसलिए नहीं कि जुमा का दिन जो है क्या है, कैसा दिन है, क्योंकि इसमें करने वाले काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये पसंदीदा क्या है, दिन है, चुना हुआ दिन है, इसमें करने वाले काम की फ़ज़ीलत अलग है। जिस तरीके से क्या है, यहूदियों को दिया गया सैटरडे, और जिस तरीके से क्रिश्चियंस को सैटरडे दिया गया कि उसमें इबादत की जाएगी। देखो, क्रिश्चियन तो हर संडे को चले जाते हैं। सैटर से हर क क कहाँ चले जाते हैं? चर्च चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने इसको जो है बिल्कुल ऐसा समझ लिया। उठेंगे 12 बजे, हम लोग का शुरू होता है नहाना, साढ़े 12 से हम लोग जो है क्या करते हैं, जुमा पढ़ना शुरू करते हैं। जुमे की नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं, फिर खाना बनता है, अच्छे-अच्छे खाने बनाते हैं, और क्या करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में लगे रह जाते हैं बहनों। क्या खाना बनाते टाइम अगर कयामत आ गई, क्या सोचा है कभी? तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना है। हफ्ते के 6 दिन हम चाहे बाकी काम करें, लेकिन हम क्या करेंगे, जुमा के दिन हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अगर ये आखिरत का दिन हुआ, तो जो है हमारा जो खात्मा है किसी ऐसी चीज़ पर हो जो कि हम बर्दाश्त ना कर पाएँ आखिरत के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर चरिंद और परिंद जो है क्या होता है, इस दिन से क्या होता है, डरता है, यानी कि हर जानवर भी डरता है कि अब सूरज निकलने वाला है, कौन से दिन का, जुमे के दिन का। अब इसी तरीके से सूरह अल अशरा की आयत नंबर 7 में हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दिन को क्या कहा, इकट्ठा होने वाला दिन, यानी कि जमा होने वाला दिन। तो सूरह अल अशरा में जुमा वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इकट्ठा होने वाला दिन यूज़ हुआ, है ना? कि वो आखिरत का दिन और क़यामत का दिन। और यूँ ही हमने तुम्हारी तरफ अरबी कुरान वही भेजा कि तुम डराओ सब शहरों की असल मक्का वालों को और जितने उसके गिर्द हैं, और तुम डराओ इकट्ठे होने के दिन से जिसमें कुछ शक नहीं। एक एक गिरा व जन्नत में
है और एक गिरा वो दोज़ख में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, और तुम डराओ इकट्ठे होने वाले दिन से, यानी कि इज्तिमा वाले दिन से जिस दिन लोग इकट्ठे किए जाएँगे। इसी तरीके से सूरे तगाबुन की ये आयत है, आयत नंबर 9, उसमें जो है फरमाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा होने के दिन। जिस दिन तुम्हें इकट्ठा करेगा सब जमा होने के दिन, वो दिन है हार वालों की हार खे खुलने का। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा काम करें, अल्लाह उसकी बुराई उतार देगा और उससे उसे गैबों में ले जाएगा, जिनके नीचे नहरें बहें, कि वो हमेशा उनमें रहें। यही बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए बाकी सूरह अशूरा और सूरह तगाबुन में भी जो है इस दिन की क्या है, जिक्र हुआ है। तो इतना ज़्यादा ज़िक्र किसी चीज़ का तभी होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई बहनों फ़ज़ीलत छुपी हुई हो। जब उसके अंदर छुपी हुई हो, क्या ज़ाहिर ही है ये तो। इतनी ज़्यादा हदीसें, हदी ऑलमोस्ट एवरी हदीस, लाइक हाँ, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन अबू दाऊद, जामिया तिर्मिज़ी, जितनी भी हदीसें हैं, जिसको जो है हम पढ़कर जो है चीज़ें सीखते हैं, उस हर किसी में जुमे के दिन के बारे में जो है दिया हुआ है। तो दैट मीन्स इट इज़ समथिंग वेरी, वेरी स्पेशल, और स्पेशल है, बेस्ट है, लेकिन बेस्ट के साथ बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काम ऐसे करने हैं। देखिए कोई चीज़ अगर बेस्ट होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम बेस्ट दिखें अपना, है ना? मान लीजिए अगर एक बहुत अच्छा इवेंट है, बेहतरीन इवेंट जिसको बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना बेस्ट दिखें, या फिर हम अच्छे कपड़े पहने, या फिर हम ऐसा काम करें कि जो हम जो है क्या करें, पसंद हो जाए, या क्या लोग चेक आउट करें लोग हमें, या फिर लोगों की नज़रों में आए। तो जुमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में अज़ीम दिन है। तो हम ऐसा काम करें इंशाअल्लाह जुमे के दिन में, जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़रों में क्या हो जाएँ, हम उसकी नज़रों में नेक हो जाएँ, और हम नेक अमाल करने वाले जो हैं बन जाएँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको वो अता करे जो वो अपने नेक बंदों को अता फरमाता है। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरीके से जुमा के दिन करने वाले अमाल। तो अब देखिए इतना हमें पता चल गया है कि जो जुमा है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला दिन है, लेकिन हम लोगों ने जो है क्या बना दिया इसको, छुट्टी वाला दिन। गल्फ में छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन ज़्यादातर क्या होता है, संडे में मोस्टली हम लोग यहाँ पर करते हैं कि संडे की नमाज़ छोड़ देते हैं। संडे में उठेंगे ही नहीं कि कल फजर छोड़ देते हैं, ये सब करते हैं। जो जो छुट्टी वाला दिन होता है उसके अंदर पक्का नमाज़ चली जाती है, और जबकि हर हैवान बताया गया, और हर जो परिंदा है वो क्या करता है, डरता है कि सूरज तुलू होगा, उगेगा जब, या फिर राइज़ होगा सन, तो क्या होता है कि कहीं कयामत का दिन ना हो। सोचिए, और हम लोग इतनी ज़्यादा गफ़लत में पड़े हुए हैं, हम लोग या तो सोते रह जाते हैं, या फिर हम लोगों को ये लगता है कि जुमा है और बाद में सूरह कहफ पढ़ ली जाएगी। हम लोग बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा गुमराहियों में पड़ चुके हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर हदीस में इतनी ज़्यादा आयतों में क्या कहा है कि ये इतने फ़ज़ीलत वाला दिन है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, और हम अगर मुत्तकी हैं, हम अगर यकीन करते हैं, तो हम इस चीज़ को मानेंगे, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा से ही, इंशाअल्लाह किस टाइम से, मगरिब के बाद से जुमा लगता है, उसके अंदर जितने भी अब हम काम बताने जा रहे हैं, या फिर काम हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें होने वाले सुन्नतों के मुताबिक क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ताकि कल को अगर कयामत, देखिए वो तो होनी है, वो तो उसका तो दिन लिखा ही हुआ है, तो आए हमारा खात्मा, हमारी आखिरत ऐसी चीज पर हो, जो ऐसा काम करते हुए जाएं कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी में जो है हमारा जाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुमा के दिन करने वाले काम, सूरह काफ की तिलावत। देखिए जुमा जो है ज्यादातर किस चीज के लिए जाना जाता है, सलातुल जुमा के लिए। सलातुल जुमा जो है औरतों के लिए जो है वो अफ़ज़ल है अगर पढ़ें तो। लेकिन जैसे इंडिया है, यहाँ पर मस्जिद नहीं है और जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में उसके लिए छूट है। तो पहले हम क्या करें, सूरह कहफ की तिलावत। ये सही अल-जामी की रिवायत है, और इसी इसका एक और रेफ़रेंस भी है। इसमें फरमाया गया, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर रोशन हो जाता है। अब देखिए नूर रोशन होने का मतलब क्या है इसके अंदर? क्या हमारे सर पर लाइट जलना? नहीं।
हमारे सर पर लाइट जलने से मतलब नहीं है इस चीज़ का। इस चीज़ का मतलब क्या है? नूर यानी कि हिदायत यानी कि रोशनी। रोशनी जब होती है कुरान में जभी भी जो है ज़िक्र किया जाता है रोशनी का या किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है कि सही और गलत का दिखना। यानी कि अगर हम लोग अंधेरे में हैं और एक कमरे में हैं तो क्या आस-पास की चीज़ों को देख पाएँगे? क्या किस चीज़ से हमें चोट लग सकती है, क्या उस चीज़ को जान पाएँगे? या फिर जो है कोई नुकीली चीज़ पड़ी है आगे, क्या उसको देख पाएँगे? नहीं ना। जैसे ही थोड़ी-सी रोशनी होती है तो हमें सब कुछ जो है क्या होता है नज़र आने लगता है। और सूरे कहफ की तिलावत से क्या है, एक जुमा से दूसरे जुमे तक क्या होता है नूर रोशन हो जाता है। अब देखिए बहनों ये नूर तो है ही, लाइट है ही, उसके अलावा ये हिदायत भी है। यानी कि एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच में कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसके अंदर सही गलत की समझ भी आपको होगी, क्योंकि हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या की है, दे दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? रोशनी दे दी चीज़ों को समझने की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सूरे कहफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सारी बहनें जो हैं वो पढ़ती होंगी। और इसकी फ़ज़ीलत अब हमने जान ली है कि क्या इसकी फ़ज़ीलत है कि एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक क्या रहता है, नूर जो है हर इंसान के ऊपर रहता है। और जब अब ये पता चल गया है, अमल है और आपके पास क्या है नॉलेज भी है, तो इस तरीके से सोचेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करेंगे हर काम में, हिदायत मिल गई आपको, सही गलत में, हलाल हराम में, अच्छे बुरे में, हर चीज़ में जो है आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है क्या है मदद मिलेगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि मैं वैसा ही हूँ अपने बंदों के लिए जैसा वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसा सोचेंगे कि मेरे पास हिदायत आ गई है और मेरे क्या है सर पर नूर है, तो अब मैं सही और गलत को सही तरीके से समझूँगी, तो मैं पूरे हफ्ते वही करूँगी। सही को सही समझूँगी और गलत को गलत समझूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सही मुस्लिम की ये रिवायत है जो कि सूरह काफ के लिए है। माज़ बिन हिशाम ने अपने वालिद से हदीस बयान की। उन्होंने कतादा से, उन्होंने सालिम बिन अबी जईद गतफानी से, उन्होंने मैदान बिन अबी तलहा यमरी से और उन्होंने हज़रत दरदा अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर ली, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो सूरह कहफ की देखिए सिर्फ 10 आयतें, और दज्जाल सबसे बड़ा फितना है। जब दज्जाल वाला टॉपिक हुआ था बहनों, उसके अंदर बताया गया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने, हर पैगंबर ने उससे अपनी उम्मत को डराया है। तो ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर कि उससे डराया गया है? वो इतना बड़ा टेस्ट है, वो इतना बड़ा फितना है कि कोई भी इंसान उससे बच नहीं सकता। और उसके पीछे जाने वाली क्या होंगी? सबसे ज़्यादा औरतें ही होंगी। लेकिन सूरह कहफ की अगर जो है क्या कर ले, हिफ्ज़ कर ले हम लोग और क्या करें, हिफ्ज़ कर ले, और इससे क्या होगा, हम दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। अब देखिए इन आयतों में ऐसा क्या होगा कि जो सबसे बड़ा फितना है, और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम तक ने अपनी कौम को डराया, नूह अलैहिस्सलाम ने डराया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, डराया। सब ने अपने कौम को उससे डराया। और यहाँ पर जो उम्मत मोहम्मदिया है उनको क्या हुआ, दे दिया गया कि आप जो है 10 आयतें, स्टार्टिंग की 10 आयतें बहनों। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर ली, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए सिर्फ 10 आयतों में इतना ज़्यादा है, और पूरी अगर सूरह कहफ की तिलावत होगी उसमें क्या है, हिदायत ही हिदायत है, नूर ही नूर है। तो काम क्या करने वाला काम है इसके अंदर, जुम्मा का दिन इतना ज़्यादा अजीम है। जुमे के दिन में जो है क्या है, अच्छे काम हम लोग करना चाह रहे हैं। और उसके अंदर क्या है, सबसे पहला काम हमने क्या देखा,
सूरह कहफ की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से गुस्ल करना। सुनन अबू दाऊद की क्या है ये? अब ये इसके अंदर करने वाले काम हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत या जनाबत जैसा गुस्ल किया, फिर जुमा के लिए आया तो उसने गोया एक ऊँट कुर्बान किया। इसमें पूरी जो है हदीसें जल्दी जाने के लिए भी हैं और बाकी के लिए भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पर गुस्ल की बात है तो इंशाअल्लाह इसको पूरा मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन गुस्ल का था तो इसलिए जो है इस आयत को यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि गुस्ल जनाबत या जनाबत जैसे गुस्ल किया, फिर जुमा जुमा के लिए आया तो उसने गोया एक ऊँट कुर्बान किया। और जो दूसरी साअत में आया, उसने गोया गाय कुर्बान की, और जो तीसरी साअत में पहुँचा उसने गोया सींगों वाला मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी साअत में आया उसने गोया मुर्गी तक़रीब के लिए पेश की, और जो पाँचवीं साअत में आया उसने गोया अंडा तक़रीब के लिए पेश किया। फिर जब इमाम निकल आता है तो फरिश्ते भी ज़िक्र सुनने के लिए हाज़िर हो जाते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है ना बहनों, कोई भी जो सवाब नहीं मिलता है। तो जो गुस्ल करना यहाँ पर मकसद था, तो गुस्ल जो है करना चाहिए, जो कि सुन्नत से साबित है और हदीस से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग तो जैसे इंडिया में रहते तो यहाँ तो है नहीं लड़कियों के लिए या औरतों के लिए मस्जिद। तो हम क्या करें, हम अपने घर वालों को जल्दी भेजें ताकि उनको कितना सवाब मिले, ऊँट जो है कुर्बान करने के जितना सवाब मिले। और ये हम सबका है कि हम क्या करें, हमारे घर के मर्दों को भेजें और जल्दी भेजें। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे ही लोग क्या करते हैं, खुतबा सुनते हैं कि खुतबा खत्म हो गया, सीधा नमाज पढ़ के चले आते हैं। यहाँ तक कि जो रजिस्टर में नाम जो होता है वो दर्ज नहीं हुआ होता है। आप सोचिए कि आप गए, आपकी अटेंडेंस ही ना मार्क हुई हो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप गए कहीं पर और आपकी अटेंडेंस ही ना मार्क हुई हो, क्योंकि जैसे ही खुतबा शुरू होता है तो फरिश्ते क्या करते हैं, फरिश्ते भी सुनने लग जाते हैं। और खुतबा किसके लिए? हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए, और फरिश्ते सुनने बैठ जाते हैं। सोचिए वो इतनी अच्छी चीज है, लेकिन उस चीज को क्या करते हैं, आजकल के हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं वो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि खुतबा है। नहीं नहीं, क्या करना है, उस चीज को सुनना ही नहीं है, सिर्फ नमाज से मतलब होता है, और जो रजिस्टर था वो भी बंद कर दिया जाता है। तो जितनी मेरी बहनें हैं वो कोशिश करें कि उनके घर के मर्द हजरात क्या करें, पहले जाएं ताकि ऊँट की बराबर जो है क्या करें, कुर्बानी का सवाब मिले। और जो गुस्ल की यहाँ पर बात आई है तो गुस्ल जो है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए ही जो है करना आया है। इसी तरीके से अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। जनाब उम्र व बिन शोएब अपने वालिद से, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं कि आपने फरमाया, जिसने जुमा के रोज़ गुस्ल किया और अपनी अहलिया की खुशबू इस्तेमाल की, अगर उसके पास हो, और अपने उम्दा कपड़े पहने। यानी कि इसमें देखिए तीनों चीज़ें आ गई, गुस्ल किया, अपनी अहलिया की खुशबू इस्तेमाल की। अगर उनके पास है तो खुशबू लगाना भी क्या है, सुन्नत से साबित है। अगर उसके पास हो और अपने उम्दा कपड़े पहने। देखिए हर दिन हम कोई और से कपड़े पहनते हैं, लेकिन जुमे के दिन क्या हो, उम्दा कपड़े पहने जाएं। फिर लोगों की गर्दनें ना फैलाएंगे, और असनाए वाज में खुतबे के दौरान में कोई लघु अमल ना किया। ये जो लोगों की गर्दनें ना फैलाएंगे इसलिए है क्योंकि जो मर्द लोग हैं उनको कहा जाता है कि आप जो है इमाम के पास, इमाम के करीब जाकर खड़े रहें। लेकिन इस चक्कर में, इस चीज के चक्कर में क्या होता है, लोग आगे बढ़ने के चक्कर में, जो लोग पहले से बैठे होते हैं उनकी गर्दन लेफ्ट राइट करके आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनकी अहलिया का मतलब होता है वाइफ। कि उनकी गर्दन क्या करके राइट लेफ्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें तो आगे बैठना है, तो ये भी नहीं आया। ये एक तरीके से क्या है, बैड मैनर है, और आप जो है ये गुड एटिकेट्स में नहीं आता है कि आप, बोला गया कि क्या कहें, पहले जाएं, तो आप पहले जाकर इमाम के पास बैठ जाएं, आप वहां पर ही रहें। तो अगर कोई भी इस तरीके से करता है तो मेरी बहनें अपने बच्चों को समझाए, और जो है अपने घर के मर्दों को भी ये बात समझाए कि ये चीज जो है नहीं पसंद की गई कि आप आगे बढ़ने के चक्कर में
पहले से जो लोग आए हुए बैठे हैं, उनकी गर्दनें कैसे करके सब बैठे हुए हैं, तो गर्दन पकड़ के ही जाते हैं ना, राइट लेफ्ट करके। मान लीजिए कोई लोग खुतबा सुन रहे हैं, तो वो जो है वो नहीं करना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना और गुस्ल करना जो है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए ही है। कोई लोगों तो ये नमाज जी, औरतें खुशबू लगा सकती हैं अगर घर में महरम हो और वो उनका जाना कहीं ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्दनें ना फै और इस्नाते वाज़ में खुतबे के दौरान में कोई लग़ू अमल ना करे, तो ये नमाज़ उन दोनों जुम्मों के माबीन के लिए कफ़ारा होगी। और जिसने कोई लघु काम किया और लोगों को की गर्दनें फलांगी, यानी कि कोई ऐसा काम किया जो कि मतलब विदाउट एटिकेट्स था, तो उसके लिए ये क्या है, ज़ोहर ही होगी। कैसी, ज़ोहर की नमाज़, यानी ज़ोहर की नमाज़ का सवाब होगा, ना कि जुमे की नमाज़ का। सोचिए कि जब आप एटिकेट्स के साथ नहीं रहेंगे, हालाँकि बोला गया कि आप पहली सफ़ा में रहें, पहली लाइन में रहें, आप ईमाम के साथ जाकर बैठे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जो लोग पहले से ही बैठे हैं, फिर उनको हटाकर क्या कर रहे हैं, आगे-आगे चले जा रहे हैं। कि हटो, मैं मुझे पहले बैठना है, मुझे पहले बैठना है, नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको वेल मैनर्ड रहना है, नहीं तो वो जुमा की नमाज़ नहीं मानी जाएगी, उसको कितना सवाब मिलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ोहर की नमाज़ का सवाब मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सलातुल जुमा, देखिए जुमा जो है सबसे ज़्यादा हाइप जो है हम लोगों के यहाँ किस लिए होता है कि जुमा की नमाज़ हमारे जो है मर्द हज़रात पढ़ने जाते हैं, कि मेरे अच्छे कपड़े निकाल दीजिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने मर्द हज़रात को ही अच्छे कपड़े निकाल के देते हैं। उन्हीं के आप आज ये गुस्ल करेंगे, आज ये अच्छे कपड़े पहनेंगे, आज इनकी नमाज़ होगी, नहीं, बाकी चीज़ें जो हैं हमारे लिए भी हैं बहनों। सिर्फ़ सलातुल जुमा जो है उसके बारे में देखते हैं कि उसके अंदर अगर पढ़ें तो अफ़ज़ल है और नहीं पढ़ें तो उसके अंदर रियायत दी गई है। सूरतुल जुमा की जो ये आयत है, आयत नंबर 9, ए ईमान वालों, जब नमाज की अजान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अब देखिए खरीद-फरोख्त का मतलब क्या हो गया कि जो भी लोग हैं, जो क्या है अपने काम में लगे हुए हैं, हर कोई हलाल रोज़ी की तलाश में जो है निकलता है और जो है वहाँ पर बाज़ार में होता है या कोई ठेला लगाया हुआ होता है या फिर जो है किसी ने क्या किया होता है, किसी भी तरीके का कोई भी बिज़नेस कर रहा होता है या नौकरी कर रहा होता है। तो यहाँ पर जुमे के लिए क्या कहा गया, ए ईमान वालों, जब नमाज की अज़ान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और खरीद व फरोख्त छोड़ दो, यानी कि जो कमाई के लिए आप गए हो उसको छोड़कर जुमा की नमाज इतनी अफजल है कि आप क्या करें, उस चीज को छोड़कर जो है चले जाएं। कहाँ? जुमा की नमाज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सलातुल जुमा जो है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करके नमाज पढ़ने अ, गोया उसने एक ऊँट की कुर्बानी दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पढ़ चुके हैं और ये सही बुखारी की में फिर से ये चीज़ आई है। इसमें कोई नए और जो कोई चौथे नंबर पर गया तो उसने गोया एक मुर्गी दी और जो कोई पाँचवें नंबर पर गया उसने गोया एक अंडा दिया। लेकिन जब इमाम खुतबा करें तो फरिश्ते भी जो हैं खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ के डालने का मतलब क्या था कि जल्द करें, जल्दी करें ताकि आपको जो है क्या है, कुर्बानी, ऊँट की कुर्बानी का क्या मिले, ज़िक्र मिले, अ, ह अज्र मिले। अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के लिए सलातुल जुमा, हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जुमा हर मुसलमान पर जमात के साथ लाज़मन फ़र्ज़ है, सिवाय 4 किस्म के लोगों के, गुलाम, ममलूक, औरतें, बच्चा और मरीज़। ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है, अगर पढ़ें तो अफ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? हर मुसलमान पर जमात के साथ लाज़मन फ़र्ज़ है, सिवाय 4 किस्म के लोगों के, गुलाम, औरत, बच्चा और मरीज़। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तारिक बिन शहाब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है मगर आपसे कुछ सुना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सही हदीस में आता है बहनों, इसका जो है जो ग्रेड है इसकी, ये सही हदीस से किया जाता है दुरूद। दरूद जो है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 ली है मैंने, ये बहुत ज़्यादा जो है पढ़ी भी जाती है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, उसके गैब बताने वाले
पर, या ए ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। उसके गैब बताने वाले पर कौन? जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरीके से जो है एक हदीस भी जो है हमारे सामने आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक हदीस भी जो है वो हमारे सामने आती है। उसमें बोला गया कि हज़रत औस बिन हज़रत अवैस बिन अवैस रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का दिन फ़ज़ीलत वाला है। सो इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, बलाशबा तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। और जो है इस चीज़ को जो है किसी ने बहुत अच्छे से सुनन अल कुबला बयाकी, ये इसका जो रेफरेंस है 5995 है। उन्होंने जो है इस चीज को क्या किया, जैदुल माद, ठीक है, वॉल्यूम 1364 से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जुम्मा जो है सरदार है किस चीज का, दिनों का, इसी तरीके से इंसानियत के जो सरदार हैं वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा जो दिनों का सरदार है, उस दिन पर इंसानियत के सरदार को क्या करें? दुरूद भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग जो है जुमा छोड़ देते हैं बहनों, उन लोगों के लिए जो है यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जुमे की कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, इतना कि हर कोई भी हदीस की बुक जो है नहीं छूटी है। कुरान की जो है सूरतुल जुमा अलग से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या की है, इसी के नाम का जो है एक सूरा है। उसके अलावा उस सूरा में वो सलातुल जुमा की भी बात की गई है कि इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है। और देखिए, फिर अगर इंसान नहीं पढ़ता है तो दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो हदीसों को नकार रहा है, और वो क्या कर रहा है, मुखालफत कर रहा है कुरान की भी और हदीसों की भी। तो अब ये उन लोगों के लिए है जो कि जो है जुमा को क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। अबू अलजाद ज़ुमरी रज़ियल्लाहु अन्हा जो सहाबी थे, बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अज़्र के बगैर और सुस्ती करते हुए 3 जुमे छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। अब ये मोहरें कौन-सी हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, मोहर लगा दिया, यानी कि देखिए सूरह कहफ पढ़ने से जिस तरीके से क्या हुआ, नूर आया, हिदायत मिली, अच्छे बुरे की समझ आई, सही गलत का समझ आया, हलाल हराम का पता चला। इसी तरीके से जिसने नहीं पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर लगा दी। किस चीज की मोहर लगा दी? कि इसने क्या किया, जो है इसने मुखालफत की है, और जो मुखालफत करता है वो बराबर किसके होता है, हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। वो अहले अहले कुरान नहीं माना जाएगा। वो कैसे माना जाएगा? वो काफिरों में से ही माना जाएगा बहनों। तो हमारे जितने भी घर में जेंट्स हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं कि जुमे की क्या फजीलत है और जुमे की नमाज की क्या फजीलत है, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो उस चीज का क्या है, खसारा क्या है, उस चीज का नुकसान कितना बड़ा है। इसी तरीके से हाकिम बिन महीना ने हदीस बयान की, कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें हदीस बयान की कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपने मंबर की लकड़ियों पर खड़े हुए फरमा रहे थे, हर लोगों के गिरोह हर सूरत जुमा छोड़ देने से बाज आ जाएं, या अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। मोहर का मतलब है कि आप क्या स्टैंप लगा देना, ठप्पा होता है ना, स्टैंप लगा देना। जैसे स्टैंप लगता है, मान लीजिए एचओडी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, पहले उनके साइन होते हैं, फिर उनका स्टैंप होता है ना, जो कि उससे लगा हुआ होता है, इंक पैड से। ठप्पा लगा देना, स्टैम्प लगा देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, उनके ऊपर मोहर लगा देते हैं किस चीज़ से, और फिर वो क्या हो जाते हैं, गाफिलों में से ही हो जाते हैं। जी, इसको दाग की तरह ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, निशान भी ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से जन्नत में क्या होगा कि जन्नत में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या होगा, दीदार होगा जो जन्नती होंगे। देखिए ये आया ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ये बहुत ज़्यादा अज़ीम वो है, बहुत ज़्यादा अज़ीम दिन है। तो देखिए जन्नत में क्या होगा,
कि भलाई वालों के लिए भलाई है और उससे भी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा, और उनके मुँह पर ना चढ़ेगी स्याही और ना खुमारी, वही जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। इसकी जो है ये आयत पहले भी आ चुकी है। इसका जो है तफ़सीर में पूछा गया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बोल रहे थे, ये वाली जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 26 है, यही बता रहे थे, तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह भलाई वालों के लिए भलाई, यानी कि जिसने अच्छा काम किया उसको क्या है, जन्नत मिल जाएगी, अल हुस्ना एंड व ज्यादा। तो अल हुस्ना का मतलब क्या हुआ, अल जन्ना हो गया, ठीक है। और उससे भी ज्यादा यानी कि जन्नत से ज्यादा क्या हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चेहरे को देखना। इस दिन क्या होगा, फ्राइडे के दिन जन्नतियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार होगा बहनों। तो ये यहाँ ही नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ भी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला दिन है। सुभान अल्लाह। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जितनी बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जिसके लिए यहाँ सब्र कर रहे हैं, जिसके लिए क्या कर रहे हैं कि कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको खामोशी से सह रहे हैं, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, और उसका चेहरा है वो, उसका दीदार होना, अल्हम्दुलिल्लाह उसका दीदार होना। इसी तरीके से सूरह कहफ की आयत नंबर 35 में भी ये बोला गया, इनके लिए है उसमें जो चाहे और हमारे पास उससे भी ज़्यादा है। यानी कि जन्नत में जो चाहेगा इंसान वो आ जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है? उससे भी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार है। तो जुमा जो है ना कि सिर्फ़ यहाँ ज़मीन पर, और वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से एक हदीस है, ये भी जो है हम पढ़ेंगे कि जुमे के दिन ही जो है चीज़ें ऐसी होंगी। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक गली है जहाँ वो हर जुम्मे को आते हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ पर आएँगे। शुमाल की हवा चलेगी और उनके चेहरों और उनके कपड़ों पर खुशबू बिखेर देगी और उनकी हुस्न व जमाल में इज़ाफ़ा कर देगी, और फिर वो अपने हुस्न व जमाल में मज़ीद चमक पैदा करके अपने घर वालों के पास वापस चले जाएँगे, और उनके घर वाले कहेंगे उनसे, अल्लाह की कसम हमारे जाने के बाद आपका हुस्न व जमाल में इज़ाफ़ा हुआ, और वो कहेंगे, अल्लाह की कसम हमारे बाद आपके हुस्न व जमाल में भी इज़ाफ़ा हुआ। ये किसके लिए आता है? शौहर और बीवी के लिए आता है कि जब जो है क्या है, लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे जुम्मा के दिन में, तो जुम्मा के दिन ऐसी हवाएँ चलेंगी बहनों वहाँ पर कि जब वो उनकी स्किन को छुएँगी तो उनका हुस्न जो है वो और बढ़ जाएगा। जब बीवी जो है अपने शौहर को देखेगी, और ये जुम्मा के दिन की बात है कि जब बीवी जो है अपने शौहर को देखेगी तो वो कहेगी कि आपके हुस्न में इज़ाफ़ा हुआ है, और उसी तरीके से जो है शौहर कहेगा कि आपके हुस्न में भी। तो जुमा के दिन में ऐसी हवाएँ चलेंगी, बाकी किसी दिन नहीं। जुमा के दिन लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पर ऐसी हवाएँ चलेंगी कि जो छुएँगी लोगों को, और क्या होगा कि उनके फेसेस जो हैं वो अलग ही नूर के हो जाएँगे, सुभान अल्लाह। और ये सब कब हो रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार भी जो है किस दिन हो रहा है बहनों? जुमे के दिन ही हो रहा है। तो जुमा की फ़ज़ीलत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी, और जब मैंने इसको पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज इस चीज़ पर बहुत अमल किया। मेरी बहनों को जो है ये चीज़ अमल करने का नहीं मिला, क्योंकि ये आज जुम्मा जो है अब खत्म हो गया है, हफ्ता लग गया है, सैटरडे लग गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जुम्मा जैसे भी आएगा तो हम सारी बहनें क्या करेंगे, कमर कस लेंगे इंशाल्लाह, और जितनी भी फजीलतें दी गई हैं, जितने भी इसके अंदर करने वाले जो है काम दिए गए हैं, उनको जो है क्या करेंगे, बिल्कुल खुशू के साथ करेंगे बहनों, क्योंकि वो दिन हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। देखिए, एक तो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, है ना? उतना ही काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद फरमाया तो ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए भी अच्छी है। ये चीज़ क्या है, मेरे लिए भी बेहतर है। लेकिन उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर काम जो है करने वाले, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर हदीस में और इतनी सारी जो है कुरान की आयतों में दी है, तो दैट मीन्स इसका बहुत
बहुत ज़्यादा क्या है फ़ज़ीलत है, इसकी इम्पोर्टेंस है, तो उस इम्पोर्टेंस से क्या करना है, हमको फ़ायदा उठाना है। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला है, एक इसलिए और दूसरा जो है तक़वा इख्तियार करके, डर इख्तियार करके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर के कि कहीं क़यामत जो है ऐसी हालत में ना आ जाए। देखिए हर हैवान यानी कि जानवर भी डरता है जब तुलू होता है, उसका सूरज जब निकलता है तो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो डर ही नहीं रहे। हमें क्या लग रहा है कि चलिए 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए नमाज़ के लिए अच्छे से। फिर आराम से 2 बजे तक हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ढाई बजे तक फिर वापस से कॉलेज चले जाते हैं। ये मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है? उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, तो घर वालों को जल्दी-जल्दी भेज देते हैं, किसके लिए? नमाज़ पढ़ने के लिए, और फिर जो है औरतें दिन भर काम करके उसके बाद जो है जुमा पढ़ती हैं। नहीं, नमाज़ जो है अव्वल वक़्त ही जो है वो बेहतर है बहनों। तो नमाज़ अव्वल वक़्त में आई है, नहाना है, मिसवाक भी हमें करना है, उसके अलावा देखिए सफाई से मतलब है, तहारत से मतलब है, मिसवाक भी करना है, अच्छे कपड़े भी पहनने, खुशबू भी लगानी है। खुशबू जो है औरतों के लिए जो है वो अगर घर में महरम है तो आप लगा सकती हैं, अगर बाहर जाएँ तो बाहर नहीं लगाना है औरतों के लिए। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, और औरतों के लिए अफ़ज़ल है अगर जुमा पढ़ें जमात के साथ, और अगर नहीं पढ़ें तो उनको जो है ये चीज़ रियायत की गई है औरतों के लिए, मरीज़ के लिए, बच्चों के लिए, और एक और थे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों के को जो है रिवायत दी गई है, औरत, बच्चा, गुलाम और मरीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी चीज़ जो है बहनों क्या नहीं की है ना, बिल्कुल से वो नहीं बन रिजिड नहीं बनाई है कि हाँ नहीं आपको ये करना ही करना है, नहीं ये नहीं होगा तो इसके अलावा जो है इस्लाम में जो है क्या है, हाँ, वो नहीं हो सकते। आप आएँगे ही नहीं अगर ये काम नहीं करेंगे तो। हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रियायत दे दी है। हर चीज़ में मेरे अल्लाह ने क्या की है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं देन डू दिस। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं देन डू दिस। हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अल्टरनेटिव बता दिया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि बोला है कि नहीं यू हैव टू डू दिस, यही करना होगा। तो हमें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए नहीं हमारे लिए बोला है बहनों, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हमारे लिए ही बेहतर हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट जब फ्राइडे आएगा तो हम इसकी बहुत बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएँगे इससे, और बहुत ज़्यादा अच्छे जो है काम करेंगे, बहुत ज़्यादा दुरूद भेजेंगे, तिलावत करेंगे, इबादत करेंगे और डरेंगे, और अगर हमने कुछ ऐसे काम किए हैं तो हम तब तक क्या करेंगे, तौबा करेंगे, सूरह काफ की जो है तिलावत करेंगे, और जो है अपने अपने अंदर क्या करेंगे, इस दिन को जो है इतना ज़्यादा शामिल कर लेंगे कि हम सिखाएँगे भी अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को जो कि बाहर जाते हैं, और उनको अव्वल भेजेंगे, ताकि जो है एक ऊँट की कुर्बानी का भी क्या मिले हमको, वो मिले, सवाब मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस दिन का फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जो है अचानक की मौत से बचाए, और हमें ऐसी हालत में मौत दे जब जो है हम ऐसा काम कर रहे हों जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी से करना, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।